example of the calculation of the gaining and sacrificing ratio. Okay, it is said that X, Y, and Z are partners. Okay, X, Y, and Z are partners in the ratio 5, 3, and 2. 5:3:2. तीन पार्टनर थे X, Y, Z, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2. Okay, now we have to calculate the gaining ratio, sacrificing ratio, and also the new profit sharing ratio of these partners in the given situation. There are number of situations given here. Okay, so in the given situation we have to see that how we will be calculating the gaining, sacrificing, and new profit sharing ratio of the partner. So it is not compulsory that all three ratios are needed to be calculated by you every time. It depends on the criteria, the information what are being given to you, and what they have asked. If they will be asking you only to calculate gaining ratio, you will just show gaining. If they say sacrificing, then you will go for only sacrificing ratio. And if it is said that you have to find out new profit sharing ratio, then the calculation will be done accordingly. Okay, आपको जैसे बोला जाएगा आप वैसे कैलकुलेशन करेंगे. So here it is said that three partners were there, X, Y, Z, in the ratio 5:3:2. ये उनका पुराना रेशियो चल रहा है. And what they have said, now they want to change the agreement, and in that change in the agreement they want to change their profit sharing ratio. And in that it was said that first condition, first calculation they have given, that if Z acquires 1/5 share from X, if Z acquires 1/5 share from X, क्या बोला गया है कि Z 1/5 शेयर किससे ले रहा है? X से ले रहा है. It means that only one partner will be sacrificing in favor of the another partner. So that's how we have to calculate this thing. So they have said that if Z is acquiring 1/5 share from X, so what we will be doing? We will be directly deducting this 1/5 share from X. Okay? हम सीधे सीधे ये 1/5 जो है X शेयर दे रहा है Z को, वो उसके शेयर में से माइनस कर देंगे. Okay? So now we can see this thing that new ratio सीधा आ सकता है X का. It is said X, the old ratio was 5/10. कैसे? 5, 3 and 2. So total 10 power. So how we will be writing 5/10? And from this 5/10, what he is doing? He is giving 1/5 part to Z. वो 1/5 Z को दे रहा है. तो अब इसके पास क्या बचेगा? Denominators are not equal. Okay. So what we will be doing? We will be finding out the LCM. अगर ये डिनोमिनेटर इक्वल होते दोनों तो हम डायरेक्ट माइनस कर देते, पर ये डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 5 and 10. तो 5 and 10 का एलसीएम विल बी 10. सिंपल सा लॉजिक है ये एलसीएम निकालने का तरीका. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, and then 2 1 1 over. So 5 2 जा 10, 10 1 जा 10. अब स्टेप में आगे बढ़े तो डिवाइड कर रहे हैं तो 10 1 जा 10, तो एक ही बार जा रहा है तो ये एक बार हो गया तो 5 1 जा 5. देन डिवाइड 5 and 10 with 5 तो 5 2 जा 10, तो ये 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2.
तो 5 minus 2, so new ratio will be 3/10. ये किसका आ गया? x का नया रेशियो. 10 comes y. अब y उसने कुछ भी नहीं करा है, he has not made any changes, he has not sacrificed, तो उसका रेशियो as it is जो है वही रहेगा, that is 3/10. इसका रेशियो 3/10, तो इसमें कोई चेंज नहीं. Then comes z. Now z, he was already having the ratio of how much? 2/10. और इसने कितना लिया है? 1/5 किससे लिया है? लिया है इससे ना, x से. तो ये रद्द कर लेगा. 1/5. सेम क्राइटेरिया विल बी फॉलोड हियर. डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एलसीएम अगेन 10 1 जा, ये 2. ये डिवाइड हो रहा है इससे, इस एलसीएम वाले फिगर से हमारा डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जा रहा है. तो 10 1 जा 10, देन 5 2 जा 10, तो ये इंटू 2, तो 1 2 जा 2, प्लस का साइन ये हो गया. तो ये हो गया 4/10. तो न्यू रेशियो बिकम 3:4. अब देखिए पहले क्या रेशियो था? 5:3:2, and now there was an agreement change in which one partner has sacrificed in favor of another partner. So what we have observed, the ratio becomes 3:4. Okay, so this is how we will be solving. From एक word है, from means direct share. ये इतना शेयर है जो एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस किया है, तो हम वो शेयर डायरेक्टली प्लस या माइनस कर लेते हैं फ्रॉम देयर ओल्ड शेयर. ओके, तो दिस वाज द वन क्राइटेरिया गिवन टू यू. तो ये फ्रॉम वाली क्राइटेरिया थी, तो हमने क्या करा? डायरेक्टली 5/10 माइनस 1/5 और इधर 2/10 प्लस 1/5, क्योंकि ये डायरेक्ट एक figure आ गया. एक that part is there, one fraction is there which is being sacrificed by one partner in favor of another partner. तो ये इस तरीके से होगा, because there are different situations in which we have to make the use of different strategies for solving this sum. ठीक, तो from word है, तो आप डायरेक्टली ओल्ड शेयर में से जो भी सेक्रीफाइसिंग का शेयर है वो माइनस कर सकते हैं, या ओल्ड शेयर में जो भी उसने गेन किया उसको आप प्लस कर सकते हैं. तो दिस कंप्लीट दिस सम इन दिस मैनर. नाउ द सेम सम इज हैविंग द अनदर सिचुएशन. इसमें एक और सिचुएशन आ रही है कि नाउ व्हाट इट इज सेइंग, इसमें एक चीज और. अब इसी सम को एक नए सिचुएशन पे चले. If Z acquires 1/5 share equally from X and Y. अब Z जो है, if Z acquires 1/5 share equally from X and Y. अब ये दूसरी सिचुएशन है, यही कहानी चल रही है, पार्टनर यही है, 3 पार्टनर, रेशियो भी यही है. पर अब आगे किस तरीके से बढ़े कि Z acquires 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X and Y. Z 1/5 शेयर ले रहा है. पिछली कंडीशन में क्या देखा था? वो पूरा का पूरा शेयर X से ले रहा था. और इस सिचुएशन में अभी इन्होंने बोला है कि Z acquires 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X and Y. अब ये 1/5 शेयर जो है वो दोनों से X और Y से बरोबर ले रहा है, इक्वल ले रहा है. तो फर्स्ट वी विल बी फाइंडिंग आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ X एंड Y. ठीक, तो कैसे निकलेगा? दिस 1/5 शेयर इज सेक्रीफाइस बाय X एंड Y इक्वली, क्योंकि जो Z 1/5 ले रहा है वो 1/5 को कौन दे रहे हैं? X और Y. और कैसे दे रहे हैं? इक्वल. तो क्या निकलेगा? इस तरीके से 1/5. इसको इक्वल करने के लिए हम आधा कर देते हैं इसको. ठीक, तो आधा करना है तो
मल्टीप्लाई, तो इट विल बी 1/10। तो अब क्या हो गया, ये 1/10 शेयर इज सेक्रीफाइस बाय x एंड 1/10 शेयर इज सेक्रीफाइस बाय y। मतलब अब दोनों ने मिलकर उसको 1/10 दिए। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आपको एक पार्टनर को 25 पैसे देने हैं और वो 25 पैसे जो दो पार्टनर हैं बचे हुए, वो दोनों मिल करके देंगे। अलग अलग 25-25 पैसे नहीं देंगे, वो दोनों मिल करके 25 पैसे देंगे। तो दोनों जब मिलके 25 पैसे देंगे तो इसका मतलब क्या है कि एक पार्टनर 25 पैसे का आधा देगा और दूसरा आधा देगा। तो दोनों मिलकर के 12.5 पैसे उस पार्टनर को देंगे जिसे 25 पैसे चाहिए। यही सिचुएशन यहाँ पे है। 1/5 चाहिए उसको, पर 1/5 वो दोनों से 1/5 नहीं लेगा, वो दोनों से मिलाकर के 1/5 शेयर ले रहा है। तो मिला करके ले रहा है मतलब आधा एक पार्टनर से और आधा दूसरे से। तो जब ये इक्वल वाली सिचुएशन आएगी तो फर्स्ट यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर विद दिस प्रोसीजर। आपको इंटू 1/2 हाफ करना है उसका। तो हाफ करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो दैट विल बी 1/10। तो ये 1/10 सैक्रिफाइस ऑफ x एंड y। अब अपन चले, तो अब अपन चलते हैं नए रेशियो की तरफ। तो न्यू रेशियो में फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज सैक्रिफाइस आ गया यहाँ पे। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला है दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं पहले, आप उन्हीं को सेट करते चलते हैं, तब इसकी जरूरत होती है और वो अपनी स्पेस जगह छोड़ता रहता है। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब x के लिए पहले चले, तो x का ओल्ड रेशियो 5/10, इसमें से इसमें सैक्रिफाइस किया है 1/10। नाउ सी बोथ द डिनोमिनेटर्स आर कॉमन, दोनों डिनोमिनेटर कॉमन आ गए, तो डायरेक्टली आप माइनस कर दीजिए 5 - 1 दैट इज 4/10। अब चले अपन y की तरफ, तो y का रेशियो था ओल्ड, दैट वाज 3/10 माइनस 1/10। इसने जो सैक्रिफाइस किया वही चीज यहाँ पे भी होगी, तो डायरेक्टली 10 और 3 - 1 2/10। तो x का न्यू रेशियो 4/10, y का न्यू रेशियो 2/10 और z का नया रेशियो, z was having the old ratio of 2/10 और इसने क्या करा था 1/10 x से लिया और 1/10 y से लिया, तो प्लस 1/10 of x and plus 1/10 of y। ठीक, so now you can see here all 10, तो ये भी कॉमन हो गया, तो here also 10 and now 2 plus 1 that is 4, क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है तो सभी प्लस हो गए, तो then it becomes 4/10। तो न्यू रेशियो now it is 4:2, 2:4। So this is your new ratio in this situation। कौन सी सिचुएशन, जब दोनों पार्टनर बरोबर शेयरिंग कर रहे हैं, किसके लिए, इन फेवर ऑफ द पार्टनर हु इज गेनिंग। तो जब इक्वल शेयरिंग होगा तो पहले हमको ये निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कि उन दोनों ने कितना एग्जैक्टली सैक्रिफाइस किया है। तो जो शेयर वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसको आधा आधा कर लेंगे दोनों, तो हाफ करके, एंड देन वी विल बी पुटिंग इनटू द फॉर्मूला दैट इज न्यू रेशियो दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लॉस इक्वली। अगली कंडीशन, यहाँ पे x, y और z तीनों ने मिलकर के ये डिसाइड किया कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग लॉस शेयरिंग रेशियो हमारा जो है वो इक्वल होगा इफ x, y and z share future profit equally।
नाउ दिस इज व्हाट फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल। पिछले में हमने क्या देखा था कि वो इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे थे इन फेवर ऑफ जेड एक्स और वाई, बट इन दिस सिचुएशन इट इज सेड that x, y, z are partners in the ratio 5:3:2, and now they have decided that they will be the equal partner in future. Equal partner means 1:1:1, तीनों 1:1:1 के रेशियो में पार्टनरशिप शेयर करेंगे। तो दिस इज डायरेक्टली जस्ट लाइक अ न्यू रेशियो। ये आपको बता दिया गया कि ये तीनों पार्टनर का नया रेशियो है, तीनों पार्टनर का पुराना रेशियो ऑलरेडी गिवन टू यू। So here we can directly use the formula that is of new ratio. हमने एक फॉर्मूला देखा था, वहां पे लिखा था हमने गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये सारी चीजें भी हमने लिखी। तो फॉर्मूला अब हमारे पास न्यू रेशियो भी है, हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है, तो डायरेक्टली वी कैन गेट द गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो वी विल बी यूजिंग ओनली वन फॉर्मूला। किसी भी एक फॉर्मूले को यूज करके आगे की गेन या सेक्रीफाइस निकाल लीजिए। लेट्स से हम यहाँ पे निकाल रहे हैं इसका गेनिंग और सेक्रीफाइस, बिकॉज न्यू इज ऑलरेडी गिवन टू यू। तो नाउ वी हैव टू सी दिस टू पार्ट कि किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस किया। तो गेनिंग oblique sacrificing ratio, because we do not know this thing, हमको ये नहीं पता होता है कि किसने गेन क्या सेक्रीफाइस किया। तो गेनिंग ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, चलिए गेनिंग रेशियो का, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो फॉर्मूला इज न्यू रेशियो माइनस old ratio of partner, or new share of profit minus old share of profit. Okay, so what it will be? X new ratio 1/3 minus old ratio. Old ratio is 5/10. ये X का ratio. So here again both the denominators are not common, so 3 और 10 का LCM निकालेंगे, तो 3 and 10 will be 30। तो 3 10 30, 10 टाइम्स, तो 1 10 10 माइनस 10 10 3 30, तो 5 3 15। अब यहाँ पे हो गया 10 माइनस 15, तो ये आंसर आपका आएगा -5/30। So if there is a negative answer, so what it will be? Now it will not be treated as gaining ratio. अब ये gaining नहीं हो गया. This is the sacrifice which is made by X. X ने इस कंडीशन में 5/30 sacrifice किया है. Now comes to Y. Again the new ratio is 1/3 minus 3/10. तो सेम थिंग, 3 और 10 का LCM 30, 3 10 का 30, 10 1 का 10, 10 3 का 30, 3 3 का 9. So here it becomes 1/30. Here positive answer, that means it is gaining. And then comes Z 1/3 minus 2/10. So again it is 30, 10 and 3 LCM. 3 10 का 30, तो 10 1 का 10, minus 10 3 का 30, तो 2 3 का 6. So it is 4/30. So this partner is also gaining. So here what we have seen, that X is sacrificing 5/30 share and Y is gaining 1/30 and Z is gaining 4/30. So that means whatever share is sacrificed by one partner will be gained by the other partner. So there has to be a similarity between the gaining and sacrificing also. Okay. So X he sacrificed 5/30. तो जो इसने 5/30 sacrifice किया है वो ही मिला करके 1/30 और 4/30 Y और Z ने gain किया है. So sacrificing ratio of X 5/30 and gaining of
दिस टू 1/30 and 4/30। तो इसमें इसका निकलेगा बस, क्योंकि न्यू रेशियो इज ऑलरेडी गिवन। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिचुएशन कि आपको अगर न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों दे रखे हैं सम में, तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज करिए, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग कोई भी एक फॉर्मूला, एंड फाइंड आउट द गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन। अब इसके बाद हम अगली सिचुएशन पे चलते हैं, एंड दिस सिचुएशन इज थिंग्स लाइक दिस। तीन पार्टनर एक्स वाई जेड। If Z acquires 1/5 share of X and 1/6 share of Y, if Z acquires 1/5 share of X and 1/6 share of Y, ठीक। अब यहां पे क्या बोला है इन्होंने कि Z ने 1/5 शेयर ऑफ X के शेयर का 1/5 पार्ट Z ने दिया है, और इसी तरीके से Y के शेयर का 1/6 पार्ट दिया है। So that means this is the part of X and Y share which is being gained by Z. But what is the exact fraction? इसका पोर्शन कितना बनता है? ये 1/5 X के 5/10 का कितना पार्ट बनता है, और ये 1/6 Y के 3/10 का कितना पार्ट बनता है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइस मेड बाय X एंड Y इन दिस केस ऑल्सो। तो पहले आएगा इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड हियर वी विल नॉट यूज द फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूले यूज कहाँ होते हैं? जहाँ पे न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो डायरेक्टली दिया हुआ है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग एंड ओल्ड रेशियो वहाँ डायरेक्टली दे रखे हैं, तो फॉर्मूले यूज करेंगे आप। ओके, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो टेक्निकली कैसे जाएंगे आप? नाउ व्हाट इट इज सेड दैट X का निकालने पहले अपन, तो इट इज सेड दैट 1/5 शेयर ऑफ X इज टेकन बाय Z, मतलब X का जो शेयर था 5/10, इसमें से 1/5 इसने किसको दिया है? Z को दिया है। तो मल्टीप्लाई करके निकाला जाएगा, 5/10 का 1/5 कितना होता है? So it will be 5/50. Then comes Y. Y का शेयर था 3/10, और उसने अपने शेयर का क्या किया है? 1/6. So it is 3/60. Okay. So this is 5/50 which is being sacrificed by X, 3/60 which is being sacrificed by Y in favor of Z। ये दोनों ने sacrifice किया। Okay. Now what we can see, इसको और शॉर्ट किया जा सकता है, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 3 1 जा 3 and 3 20 जा 60. So what is seen that 1/10 is sacrificed by X and 1/20 is sacrificed by Y. ठीक, so this is their sacrificing ratio. अब अपन चलते हैं न्यू रेशियो की तरफ। ठीक, so now new ratio formula will be old ratio minus sacrificing ratio. Okay, तो sacrifice is made by X and Y, तो यहाँ पे निकाल लिया जाए X का old ratio था 5/10 and what he has sacrificed 1/10. So direct दोनों 10 हैं, so it will be 4/10 new ratio of X. Now Y is 3/10 and minus 1/20. इसने 1/20 किया, तो 10 and 20 का एलसीएम निकाला जाएगा, so it will be 20 only. ठीक, एलसीएम निकालने के लिए आप सिंपल मेथड यूज करिए,
तो 10 and 20 का LCM 20, 10 1 का 10, 10 2 का 20 and then 2, तो 10 2 का 20. Okay, so again 10 2 का 20, so 3 2 का 6 minus 20 1 का 20, so 1 time, so 1 1 का 1. So this will become 5 by 20. Okay, and now comes Z. अब Z ने क्या करा, जो X और Y में सेक्रीफाइस किया है वो Z ने गेन किया है. तो Z का नया रेशियो बनता है, ऑलरेडी Z इज हैविंग 2 by 10, इसमें प्लस होगा प्लस 1 by 10 which he has gained from X and plus 1 by 20 which he has gained from Y. तो अब ये हो गया तीन फिगर का कॉन्सेप्ट. तो 10 10 and 20 का LCM भी यही निकलेगा, 10 1 का 10, 10 1 का 10 and this 10 2 का 20. तो 10 2 का 20 only. Again 10 2 का, तो 2 2 का 4 plus 10 2 का 1 2 का 2 plus 20 into 1 so 1. So that will be 7 by 20. Okay, so now the new ratio 4 by 10, 5 by 20 and 7 by 20. But in this you have to see this thing that 4 and 5 9 and 7 16. 16 by 20 नहीं होता है. रेशियो ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमेशा 1 रहता है, 1. ओके, सो 1 कब बनेगा ये, जब सारे टोटल ऐसे बनेंगे 20 आउट ऑफ 20. मतलब जो तीनों पार्टनर का शेयर है उसका टोटल भी 20 होना चाहिए. अब वो कैसे होगा, यह वन पार्टनर इज हैविंग 520, अनदर वन इज हैविंग 720 और यहाँ पे है 4 by 10. So this 10 has to be converted into 20. इस 10 को हमको 20 में कन्वर्ट करना है. 20 में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 को ऐसे कौन से फिगर से मल्टीप्लाई करें जो वो 20 बन जाए. बताइए किस फिगर से मल्टीप्लाई करें, तो इट विल बी 20. तो 10 2 जा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा. तो ये 2 का मल्टीप्लिकेशन हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे. तो नाउ इट विल बी 8 by 20. अब आप देखिए तो न्यू रेशियो बना 8:5:7 और 8 and 5 13, 13 and 7 20. ये पूरा हो गया. तो दिस इज द न्यू रेशियो इन दिस केस. तो ऑफ वाली सिचुएशन पहला एक वर्ड पकड़ा था हमने फ्रॉम. फ्रॉम में व्हाट वी हैव डन, हम डायरेक्टली माइनस कर लेते थे फ्रॉम देयर ओल्ड रेशियो. बट इन केस ऑफ अगर ऑफ दे रखा है तो ऑफ दे रखा है, दैट मीन्स दैट इज सर्टेन पार्ट ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ देयर शेयर. ये पार्ट है. अभी फ्रैक्शन फिगर चाहिए इसका, तो दैट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. तो अब आप देखिए यहाँ लिखा वो 1/5 ऑफ था, यहाँ लिखा 1/6 ऑफ, और जब हमने इसको फ्रैक्शन में निकाला तो इट बिकम 1/10 and 1/20. तो ऑफ वाले केस में हम पहले क्या करेंगे, जिस भी पार्टनर का शेयर बोला है कि इसने इतना सेक्रीफाइस किया है ऑफ हिज शेयर, तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है. तो वी विल गेट दिस. ओके, तो मल्टीप्लिकेशन वाली कॉन्सेप्ट सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम दो जगह यूज करके आए हैं. एक तो हमने इस कॉन्सेप्ट में यूज करी है ऑफ वाले में, और एक जब हमने ये देखा था कि इक्वल सेक्रीफाइस किया गया था पार्टनर के द्वारा. सो इन दैट केस ऑल्सो फर्स्ट वी हैव फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. एक कंडीशन आई थी वेयर ओल्ड एंड न्यू बोथ द रेशियोज वर गिवन, तो हमने डायरेक्टली कर दिया फॉर्मूला लगा के. एक सिचुएशन आई थी फ्रॉम वाली, तो फ्रॉम वाली में हमने क्या करा, विदाउट टेकिंग द एलसीएम, हमको एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ी. उसमें जो भी फिगर आए थे हमने डायरेक्ट माइनस कर दिए. तो डायरेक्ट माइनस करने के लिए एक चीज चाहिए, डिनोमिनेटर शुड बी सेम. ओके, so hope all these numericals will help you in solving the problems
related with calculation of the gaining and sacrificing ratio. इन सब से आप ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे. Go through this and see that what I have explained, and then try to solve the various numericals which are given to you. Okay. Thank you and have a